वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब? बेटा आपको पता है कि जैसे कि हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड 2 exercises, exercise 2.1 complete and 2.2 up to question number 8. Now we can now today we are going to produce our next question, that is question number 9 up to question number 8. Two questions are very important, that is मैंने आपको कल ही मार्क करवा दिया था उनके बारे में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारे पास, और ये हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से डील करता है बेटा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना हो, दैट इज हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करनी हो कोई वैल्यू, और हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेशन आ जाए, तो उस केस में हम क्या लेट करते हैं। तो कल अगर आपने कल की वीडियो चेक की हो तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर फॉर्मेशन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनता है, देन पुट x इज इक्वल्स टू a sin थीटा। हम x को क्या पुट करेंगे बेटा? a sin थीटा। दैट इज फ्रॉम हेयर वी गेट टेंजेंट इनवर्स। फ्रॉम हेयर इट इज a sin थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने x को क्या पुट किया है? a sin थीटा, एंड x इज इन स्क्वायर, therefore it will be a square sin square theta. So from here tangent inverse a sin theta divided by root of a square into 1 minus of sin square theta. Clear बेटा? That is tangent inverse a sin theta divided by 1 minus sin square theta means cos square theta, that is root of a square cos square theta. And now square root आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल. That is we get tangent inverse. In numerator there is a sin theta, and in denominator there should be a cos theta. Now a से a भी cancel हो गया बेटा आपके पास. That is finally we get tangent inverse into of tangent theta. tan inverse से tangent है, आपको पता है हम क्रॉस करके नहीं दिखाते, बट ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि कैंसिल हो जाएगा. We have remained only theta, and from here when we find out theta, then we can say this sin theta is equals to x by a. This will implies theta is equals to sin inverse x by a. यही होगा बेटा. Therefore the simplified form this will be sin inverse x by a. That is your answer for this question. ठीक है, एक बार रिपीटली चेक कर लीजिए. There is tan inverse x upon root of a square minus x square when we let x is equals to a sin theta, because here is the formation of a square minus of x square. So when we see such type of formation, then we let here x is equals to a sin theta, and from here when we find out sin theta equals to x by a, that is theta is sin inverse x by a. Now letting this value in the question, that is tangent inverse a sin theta divided by a square minus a square sin square theta, that is a sin theta divided by a square 1 minus sin square theta, and 1 minus sin square theta can be written as cos square theta. So we can write this formation as a cos theta whole square, and squares cancel out the root, therefore tan inverse a sin theta by a cos theta, cancelling a from numerator and denominator, we get tan inverse into tan theta, that is remaining only theta. Now from here the value of theta is sin inverse x by a. So this is the simplified form this question. Okay, so please look this. Now I am coming at question number 10. In question number 10 also we substitute the value for any variable. So check what this question says to us. In question number 10, there is a value tangent inverse 3a square x minus x cube divided by a cube minus 3a x square, where a is greater to 0 and condition is minus a by root 3 is less than or equal to x is less than or equal to a by root 3. That is x belongs to clause interval minus a by root 3 to a by root 3. तो देखिए बेटा अब इस क्वेश्चन में हमको हमें क्या करना है, हमें बतानी है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म.
तो देखिएगा हम यहाँ से बेटे x को लेट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू a टेंजेंट थीटा। देखिए टेन थीटा लेट करने के बाद कितनी वैल्यू आती है बेटा हमारे पास, दैट इज टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर। x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे बेटा, टेंजेंट a टेंजेंट थीटा, दैट इज a क्यूब हो जाएगा ये, क्योंकि x को हमने क्या पुट किया a टेन थीटा, a स्क्वायर ऑलरेडी है a क्यूब टेन थीटा, माइनस x को पुट करेंगे दैट इज a क्यूब टेंजेंट क्यूब थीटा divided by a cube minus of 3a into a tangent theta square, यही आएगा आपके पास। That is from here we get tangent inverse 3a cube tangent theta minus a cube tangent cube theta divided by a cube minus of 3a cube tangent square theta। क्लियर है बेटा? अब देखिए फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी कैन टेक द a cube as a common, then here will be 3 tan theta minus tangent cube theta divided by a cube 1 minus 3 a cube minus of, here will be a cube, yes a cube minus of 3 tangent square theta। ठीक है बेटा, यही आपका आएगा, यहाँ से a cube से a cube आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट इज वी गेट टेंजेंट इनवर्स। ठीक है बेटा, दैट इज वी हैव 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus 3 tangent square theta, which is the formula for tangent of 3 theta. This will imply tangent inverse. This can be written as tan of 3 theta because this is the formula for tan 3 theta. Cancelling from here, we get only 3 theta. And when we find out as a previous question theta from here, then here will be x by a equals to tan theta. This will imply theta is tan inverse x by a. So when we let this value as, then we get 3 tan inverse x by a. That will be your answer for this question. Is it clear? So please see this. Now from question number 11 and onwards, we are to find the value, that is they are saying find the values for each of the following, that is we have to find out the value of the variable from the here. And in question number 11 is a very important question, frequently asked in your board exams. Question number 11 important, it is given tan inverse 2 cos 2 sin inverse half। ठीक है बेटा, ये आपको गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से द वैल्यू ऑफ आर वेरिएबल, दैट इज हमारे पास क्या वैल्यू होती है, वी आर टू फाइंड द वैल्यू। अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो देखिएगा टेंजेंट इनवर्स इट्स 2 cos, इस 2 को एज इट इज रहने दीजिए साइन इनवर्स। क्या बेटा ये 1/2 को आप इन टर्म्स ऑफ साइन को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लेट कर सकते हैं यहाँ से, that is 2 cos 2 sin inverse into sin of, here will be pi by 6 because it is the value of your sin 30 degree. So from here we get tan inverse 2 cos 2 into, we have only pi by 6 because from sin inverse and sin it should be cancelled, 2 into pi by 6. So here will be pi by 3, that is tan inverse 2 cos pi by 3. And now letting the value as cos pi by 3, cos 60, that is tangent inverse 2 into 1/2, cancelling from here, that is tan inverse value of 1. So 1 can be let as tangent pi by 4 and cancelling from this we have the value as pi by 4. Therefore the value of the the value of the question will be pi by 4. ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। तो बेटा ये चेक कर लिया आपने, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12।
देखिए बेटा व्हाट दिस क्वेश्चन सेज टू अस. क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 is given as cotangent tan inverse A plus cot inverse A. देखिए बेटा कल मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी. एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी इफ देयर इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन, वी गेट वैल्यू एज पाई बाय 2. Similarly, when we get the value of tan inverse x plus cot inverse x, it is also gives the value as pi by 2. So from this concept we can say here cot of complete this value can be given as the value as pi by 2 and cotangent of 90 will be value as 0. ठीक है, 1 मार्क में आने वाला क्वेश्चन है तो इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर कितना होगा 0. Now question number 13, that is a very important question from this exercise. In question number 13 it is given to us tangent half sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square, where modulus of x is given as greater is less than 1, y is greater to 0 and xy is less than 1. ये कंडीशन गिवन है हमें. इन कंडीशंस को यूज करते हुए जो बेटा आपने यहाँ से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड को अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पर मैं ऐसे पुट करती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा एंड y इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा. ठीक है, क्योंकि x आप कंप्लीट एक अलग वेरिएबल है और y अलग है तो दोनों ही टर्म के लिए हम अलग अलग वैल्यूज को लेट कर लेते हैं. सो व्हेन वी फाइंड थीटा फ्रॉम हियर then we get tan inverse x and the value of alpha will be tan inverse y. And letting these values in your question, then it will be tangent half sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tangent square theta, यही वैल्यू बनेगी आपके पास, प्लस cos inverse 1 minus tan square alpha upon 1 plus tan square alpha. Is it clear to everyone? अब देखिए बेटा that is tangent of half. According to our formulas as we have discussed in previous lecture, it will be sin inverse. This will be the formula for sin of 2 theta plus cos inverse. It is the formula for cos of 2 alpha. And when we cancelling these values, we get tangent of half will be 2 theta plus 2 alpha. Clear बेटा? That is tangent of half 2. At the place of theta, you can let here tan inverse x, and the place of alpha, you can let here tangent inverse y. Tangent inverse y. अब देखिए बेटा 2 दोनों ही टर्म में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं. That is यहाँ से बना आपके पास बेटा टेंजेंट ऑफ हाफ इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. क्लियर है बेटा? दैट इज ये कैंसिल हो जाएगा बेटा. दैट इज टेंजेंट ऑफ, अब कल हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. इट कैन बी डिराइव्ड एज टेंजेंट ऑफ इन इनसाइड tan इनवर्स. If there is plus in inside, that it will be the formula for tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. Cancelling tan and tan inverse, and we have the value as x plus y upon 1 minus x into y. ये आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा. क्लियर है बेटा? So please have a look on this. It's a very important question to you. Now there is question number 14. In question number 14, it is given बेटा, चेक कीजिएगा इसे ध्यान से. In question number 14, they are saying that if sin
1/5 plus cos inverse x is equals to 1, then find the value of x. then हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड x कि x क्या होगा, ये आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना एक कॉन्सेप्ट अभी यूज करेंगे जो हमने अभी प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, जो साइन फंक्शन है जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, so it can be written as sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equals to sin inverse 1. Clear बेटा? Now it's sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equals to sin inverse 1 can be written as sin 90. हम लिख सकते हैं बेटा ऐसा। अब देखिए क्या साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, and when we cancel out we get the value as sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equals to pi/2. also we can write this cos inverse x is equals to pi/2 minus of sin inverse 1/5. so 90 minus of sin, it can be also written as cos inverse 1/5. Cancelling from both sides, we get the value of x as 1/5. We are to find the value of x, therefore the value of x will be 1/5. Clear? So come at the next question, that is question number 15. That is also important question. एक बार वीडियो को बीच में पॉज करके बेटा अपने हर क्वेश्चन के एंड में एक बार रीड किया करो कि कहीं कोई ऐसा स्टेप तो नहीं है जो आप लोगों के लिए डाउटफुल हो। नाउ कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 15. In question number 15 it is given if tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equals to pi/4, then find the value of x. हमें x की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। देखो अभी आपने क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहाँ पर जो कम्प्लीटली आपका फर्स्ट टर्म में आ रहा है tan इनवर्स के साथ, दैट इज x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, क्या हम उसको x लेट कर लें, और जो सेकेंड आपका है tan इनवर्स के साथ उसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इफ वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला दैट इज टेंजेंट इनवर्स x plus y upon 1 minus x into y, ठीक है बेटा, लग गया हमारे पास फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू pi/4। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी भी स्टूडेंट को? हमने यहाँ पर सिर्फ क्या किया है, फॉर्मूले को अप्लाई किया है कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू टेंजेंट pi/4। अब जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में साइन से हम उसको उस तरफ लेकर गए थे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से, तो वैल्यू क्या बन के गई थी, साइन इनवर्स। ये ऑलरेडी इनवर्स में है, इनवर्स का अगेन जब हम इनवर्स लेंगे तो नॉर्मल फंक्शन बनता है, दैट इज x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, x minus 1 into x minus 2 and x plus 1 into x plus 2 is equals to, जब ये उस तरह जाएगा तो बनेगा tangent pi/4 and tan pi/4 can be written as value 1। तो ये एक्सप्रेशन कम्प्लीटली किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, ठीक है। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं बेटा तो ये कुछ ऐसे बनेगा x minus 1 into x plus 2 plus x plus 1 into x minus 2 divided by रूट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ से हम लेते हैं बेटा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस ऑफ a माइनस बी ए प्लस बी से ये हो बना बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 1। ये एलसीएम आपका कैंसिल।
अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारी कितनी वैल्यू आती है बेटा। तो यहाँ से बना आपका, देखें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस टू एक्स दैट इज प्लस एक्स माइनस ऑफ टू, यही आएगी इसकी मल्टीप्लीकेशन प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये बना बेटा एक्स माइनस ऑफ टू एक्स मीन्स माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही आएगा। आप देखिएगा जरा, x पॉजिटिव x नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो न्यूमिनेटर से हमारे पास वैल्यू बनी बेटा 2x स्क्वायर माइनस फोर। यहाँ देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस फोर प्लस वन मीन्स माइनस ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू वन। अब ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा, तो क्या हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि दिस 2x स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ थ्री, इधर मल्टीप्लाई होगा दैट इज 2x स्क्वायर is equals to minus 3 plus 4 that is 2x square is equals to 1 that is x square is equals to 1 by 2. This will implies the value of x is plus minus 1 by root 2. So we are to find out the value of x from here. So value of x is plus minus 1 by root 2. So please एक बार इसे चेक करो बेटा, ये important question है, मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में। That is the important question of this exercise. Now I am coming at question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए बेटा ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 16 में दे आर सेइंग फाइंड द वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन क्वेश्चन नंबर 16 राइट। द वैल्यू इज साइन इनवर्स, इट इज साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 पाई बाय 3। देखो बेटा हमें यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कल हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे। आप यहाँ से कहोगे कि मैडम साइन इनवर्स तो साइन से कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा 1 मार्क में क्वेश्चन बना, तो आंसर 2 पाई बाय 3 आ गया। नहीं, रॉन्ग। क्योंकि बेटा हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन की जो ब्रांच वैल्यू होती है, दैट इज जो रेंज प्रिंसिपल रेंज वैल्यू होती है, दैट इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो आप ये कहेंगे कि as we know the range value of sine inverse function, sine inverse x is माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल, यही होती है ना हमारे पास रेंज वैल्यू। लेकिन क्या ये जो 2 पाई बाय 3 है वो हमारे इस इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं? कल हमने प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस क्वेश्चन किए थे, तो जब हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी तो देखा था हर क्वेश्चन में कि क्या वो आपकी जो आपकी वैल्यू आई है वो की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के विद इन है। अगर है तो हमने कहा कि हाँ जी यही इसका सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर हम चेक करें तो 2 पाई बाय 3 डजंट बिलोंग टू द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, सो वी कांट से फ्रॉम हियर that sine inverse can be cancelled out sine by sine and value will be 2 pi by 3. So for this we can write this as sine inverse sine of this 2 pi by 3 can we write this in this formation, that is sine inverse sine of pi minus pi by 3. Now pi minus theta, ये आपने 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे ना, यहाँ पर ये 4 क्वाड्रेंट्स हमने पढ़े थे। यहाँ पर आपके पास 0 टू 90 वैल्यू बनती है, इधर 90 टू 180 बनती है, इधर 180 टू 370 बनती है, एंड हियर 370 टू 270 टू 360 बनती है। ठीक है, यही होती है ना हमारे पास वैल्यू। अब 180 माइनस थीटा की 180 से कुछ कम, तो कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और हमारे पास याद रखने का तरीका था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दैट इज एस मीन्स साइन पॉजिटिव एंड कोसेकेंट पॉजिटिव। साइन कहीं है तो वी कैन राइट दिस एज साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 3. So now we can cancel out and the value is pi by 3 and this pi by 3 belongs to our range value minus pi by 2 to pi by 2. Therefore our answer will be pi by 3. ठीक है बेटा, क्लियर है? तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
बेटा similarly in the next part that is tan inverse tangent, next question tan inverse tangent 3 pi by 4, वहां पर आपके पास वैल्यू है tan inverse में अंदर है tangent, यहाँ है 3 pi by 4. आप सेम कहेंगे as we know the range value of our tan inverse function is open interval minus pi by 2 to pi by 2, but 3 pi by 4 doesn't belongs to that interval, that is that range value. Therefore we can write 3 pi by 4 by pi minus pi by 4. Pi minus theta lies in the second quadrant, but we are discussing about the function of tangent, and tangent is positive in which quadrant? In the third quadrant. Therefore in the second quadrant tangent will be negative, therefore it can be written as minus of pi by 4. So next question में आपका आंसर कितना आ जाएगा? minus pi by 4. So do it by yourself. Now I am coming at question number 18. That is the most important question of this exercise. इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपके अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस में पढ़ने को मिलेंगे आपको बेटा. See what this question is saying. In this question, question number 18, it is given tangent of sin inverse 3 by 5 plus cos inverse 3 by 2. ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करनी है बेटा? वैल्यू. देखो बेटा अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए उसमें अगर आउटसाइड में साइन इनवर्स था तो इनसाइड में साइन था, अगर आउटसाइड में साइन था तो इनसाइड में साइन इनवर्स था. ठीक है, अब यहाँ देखिए टेंजेंट है बाहर और इनसाइड में इनवर्स टर्म में एक साइन की टर्म है साइन इनवर्स और एक है कॉस इनवर्स की टर्म. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं बेटा. मैं जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे मैं आपको मिसलेनियस में बताऊंगी शॉर्टकट, लेकिन अगर मैं आपकी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो हमने 10th स्टैंडर्ड में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी. ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंगली बेटा क्या करते हैं, देखो हम इन जो वेरिएबल्स है ना, ये जो कंप्लीट जो दो टर्म है ना, उनको कोई अलग वेरिएबल मान लेते हैं और जो साइन इनवर्स है उसको भी मैं इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट लिख दूं और जो कॉस है उसको भी इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट लिख दूं. अंदर आपकी दो टर्म आ जाएंगी टेन इनवर्स में और हमारे पास ऑब्वियसली एक फॉर्मूला होता है जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए होता है, ताकि इनसाइड में हमारा टेन इनवर्स फॉर्म हो जाए और जो टेंजेंट फंक्शन है वो यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, अब करना कैसे है वो देखिए. मार्क एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो सी फ्रॉम हियर, if we are saying this sin inverse 3 by 5 is equals to theta, clear, and this cos inverse 3 by 2 is equals to alpha, you can say x and y also. ठीक है, so from here 3 by 5 will be sin theta and from here 3 by 2 is equals to cos alpha. ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो साइन कोस और टेंजेंट को बताता है. ठीक है, अब अगर हम अपना एक ट्रायंगल फॉर्म करें और हम ये देखें साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 by 5 एंड व्हाट इज द साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज दिस इज योर परपेंडिकुलर, 3 is your perpendicular, hypotenuse is your 5. When we find out the base, then what will be the value of your base? That is 25 minus of 9. 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा बेटा आपके पास? That is 16, that is root of 16 बनेगा, मीन्स 4 बन जाएगा आपके पास. ठीक है, तो बेस कितना बन जाएगा बेटा आपके पास? ये रूट में चल रही है, ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास ऐसे मान लीजिए रूट में चल रही है. ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा? 4. तो यहाँ से अगर इसी ट्रायंगल से मैं टेंजेंट को लिखना चाहूँ तो टेंजेंट क्या होता है मेरे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. Now what is the perpendicular? Perpendicular is 3 and your base is 4. So we can write here कि tangent theta must be equals to perpendicular, that is 3 divided by base. Base means 4. Clear है बेटा? अब यहाँ से अगर मैं ये कहती हूँ थीटा निकालूं तो थीटा की क्या वैल्यू? टेंजेंट इनवर्स 3 by 4, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. तो यहाँ से देखो ये भी तो थीटा की वैल्यू है और ये भी थीटा की वैल्यू है, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर मैं साइन इनवर्स में लिखती हूँ तो वैल्यू 3 by 5 बनती है और अगर टेन इनवर्स में लिखूँ तो वैल्यू 3 by 4 बनती है, जो आपस में क्या है? इक्वल है.
इसी तरीके से मैं यहाँ से अगर वैल्यू चेक करती हूँ तो ये देखिए, ये आपके पास एक ट्राइंगल बना लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाउ cos अल्फा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस मीन्स दिस इज योर 3 and hypotenuse means 2 and we are to find out, यही वैल्यू नहीं बेटा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ जी ठीक है, cos इनवर्स 3/2 ही हमें गिवन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू चेक करते हैं बेटा तो इसी तरीके से इसको भी हम किस में कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंजेंट में। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा मेरे पास, यहाँ से बताइए। आई थिंक इस क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कि 2/3 वैल्यू हो हमारे पास, क्योंकि 3/5 है तो ये हमारे पास क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो सबसे ज्यादा होती है। तो आई थिंक बेटा ये साइन इनवर्स यहाँ पर 2/3 है आपके पास। ठीक है, ये साइन इनवर्स विल बी 2/3। ठीक है, इधर 2/3 कहेंगे आप, इट विल बी 2/3। तो यहाँ पर ये बन गया आपके पास, दैट इज बेस आपके पास कितने है, बेस इज 2 एंड हाइपोटेन्यूज इज 3। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ बेटे वैल्यू तो कितनी बनेगी, दैट इज 9 माइनस ऑफ 4 दैट इज कितना बना 5, दैट मीन्स रूट ऑफ 5। इधर से भी आप टेंजेंट की वैल्यू लिख लीजिए, दैट इज टेंजेंट अल्फा कितना बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपके पास, परपेंडिकुलर इज योर रूट 5 एंड योर बेस इज 2, यही आएगी बेटा आपके पास वैल्यू। अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूं दैट इज टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 5/2, इतना ही बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटे, तो क्लियर है। अब दो टर्म आ गई मेरे पास, अब थीटा की वैल्यू में मैं यहाँ, क्योंकि इसको कंप्लीट को मैंने क्या माना था, थीटा, और इसको कंप्लीट को मैंने क्या माना था, यहाँ पर अल्फा माना था। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अब इस क्वेश्चन को हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्मेशन से फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 5/2। ठीक है, तो आप इसे एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, बेटा यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें कॉस इनवर्स नहीं गिवन है। एक मिनट, इसे चेक कीजिएगा, सिर्फ यही टर्म चेक करना। अगर ये कॉस में आती है ये टर्म आपके ऐसे, तो आप यहाँ पर सेम वैल्यू निकालोगे, रूट ऑफ 5/2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ये मिसप्रिंट है बेटा, यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स है बेटा, ये कोट इनवर्स 3/2। तो सीधी सीधी बात है, ये तो हमने टर्म जो साइन इनवर्स की थी वो तो हमने निकाल दी टेंजेंट में, और इसको तो बेटा डायरेक्टली इफ देयर इज कोट इनवर्स 3/2, तो अगर मैं इसको टेंजेंट इनवर्स में लिखूं तो क्या ये tan इनवर्स 2/3 नहीं हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने थीटा माना था, जो है आप इसको, ये हमने चेंज करके इसको tan इनवर्स में लिख दिया। अब आप इसे इसमें लेट कीजिएगा तो क्वेश्चन कितना बनेगा आपके पास, कैसे बनेगा, टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, tan इनवर्स 3/4 प्लस बेटा कोट इनवर्स 3/2 को हमने लिख दिया tan इनवर्स 2/3। ठीक है, तो अब यहाँ से हम चेक करते हैं बेटा, दैट इज टेंजेंट ऑफ, फॉर्मूला लगाएं बेटे, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, यही बनेगा ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये वैल्यू आ गई बेटा आपके पास। अब देखिए ध्यान से, दैट इज टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, आपका एलसीएम कितना बनेगा बेटा, 12 एलसीएम बनेगा इधर से, ये 12 एलसीएम बन गया आपका, 4 3 12 and 3 3 9 प्लस 3 4 and 4 2 8 डिवाइडेड बाय 12 माइनस ऑफ 3 2 6 डिवाइडेड बाय
12। ठीक है बेटा, तो देखिए 12 से 12 आपका हो गया कैंसिल, tan इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचा बेटा 17 और डिनोमिनेटर में बचा 6, देयरफॉर योर वैल्यू विल बी 17/6। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी ना, आई थिंक वो जो है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आता है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर ये cos इनवर्स में आता है तो √5/2 इस तरीके की वैल्यू बनेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू एन एनसीईआरटी इट इज गिवन हियर cot इनवर्स 3/2। ठीक है, in my book this was misprint, therefore it is correct. This is tangent of sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2. So directly cot inverse 3/2 can be written as tan inverse 2/3, and for this term we should let this sin 3/5 as theta, therefore 3/5 is equals to sin theta. So from by our Pythagoras we can write this tangent theta as 3/4. मैंने अभी आपको करके दिखाया था कंप्लीट, therefore theta किसके इक्वल हो गया बेटा, tan inverse 3/4. So letting this value in terms of tangent and this value also in terms of tangent here, and tan inverse x plus tan inverse y, the formula will be this, and when tan inverse cancelling from both sides we get value as 17/6. ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपकी एक्सरसाइज का। ये वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेटा इस एक्सरसाइज में ये लास्ट क्वेश्चन माना जाता है। बेसिकली अब आगे तो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क में आने वाले। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 से आपका मिसलेनियस का बेस बना रहेंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस में ना कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि बाहर अगर टेंजेंट है और इनसाइड में साइन है, कॉस इनवर्स है, तो आप कैसे उसको टेंजेंट की फॉर्म में ऐड करेंगे। बाहर साइन इनवर्स है या साइन है बाहर और इनसाइड में एक टर्म टेंजेंट में है एक कॉस में है, तो आप किस तरीके से अपनी वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, अगर दोनों ही टर्म साइन इनवर्स में है तो क्या करेंगे, दोनों टर्म कॉस इनवर्स में है तो क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे जब हम अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अब आइए अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 अभी मैंने आपको करवाया है ऐसा ही क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 1 मार्क का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन नंबर 19 इट इज गिवन cos इनवर्स here is cos इनवर्स cos of 7π/6। तो बेटा आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि cos फंक्शन की जो रेंज होती है इनवर्स फंक्शन की cos इनवर्स की, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, दैट इज 0 to π। यही होती है हमारे पास रेंज वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल रेंज वैल्यू। देयरफॉर ये जो 7π/6 है दैट डजंट बिलोंग्स टू दैट इंटरवल 0 to π। देयरफॉर हम क्या करेंगे बेटा, इस टर्म को क्या हम ऐसे लिख लें, cos इनवर्स cos ऑफ π प्लस π/6 लिख सकते हैं बेटा हम इसको ऐसे, क्योंकि 7π/6 है, that is π plus π/6 means 7π/6. Now it lies in the third quadrant, pi plus theta, 180 plus theta lies in the third quadrant, and third quadrant is the house of your tangent. Therefore cos will be negative, that is cos inverse cos of angle will be negative, that is minus of π/6. और कल हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि अगर cos इनवर्स हो और इनसाइड का एंगल आपका नेगेटिव आ जाए, so we can write this as cos inverse cos of pi in this form. ठीक है, cos inverse cos cancel, therefore the value will be 5π/6. ठीक है, for your question number 19 your B option will be correct. Clear? Now there is question number 20. It's a very simple question, 1 mark MCQ is here. It's sin of π/3 minus of sin inverse minus of half. Simply you can write here as this sin of, that is π/3 minus of sin inverse minus half can be written as sin of minus π/6. So ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, that is inside में आपके पास कितनी वैल्यू आएगी बेटा, that is π/3 plus π/6. Is it clear? That is sin of, LCM कितना आएगा बेटा 6, that is it becomes 2π plus π, that is sin of 3π/6, that is we get a value as sin 90 and the value of sin 90 is 1. Therefore आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1. So D option is your correct answer. ठीक है बेटा, clear? Now question number 21. In question number 21 there is tangent inverse √3 minus cot inverse minus of √3. Similarly आप अपने एंगल्स की
वैल्यू को √3 को इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट हम क्या लिख सकते हैं, और जो आपका cot इनवर्स -√3 है इसको हम tan इनवर्स -1/√3 लिख सकते हैं। तो दोनों की वैल्यू को आप वहां पर लेट करके अपने आंसर को कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर इस आंसर को कैलकुलेट किया। सो बेटा यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो रही है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। विद 1 क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ से डिस्कस किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। भले ही इसकी वेटेज बेटा आपकी कम हो, लेकिन कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपका सीबीएसई के क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो बेस्ड होते हैं आपकी प्रॉपर्टीज पे। तो बेटा इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, जितनी भी प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से लर्न करके अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।